Hello, welcome to speedearning.in and smallstoploss.in. Today we are discussing some very important trading tips. You should apply all those tips and you see what are the changes in your profit. So whenever you hit a stop loss, leave the screen for a while immediately and go to some other important work. Or you can hear some music, you can talk to any of your friends, and you can play with your children, whatever it is, you just take a break. Because it will recover your mental balance. The maximum big losses are just a reaction to the mini losses. Means first of all, you are having some small loss and then you are reacting and making it big with your mental imbalance. So you need a break, and after a big loss or after any big profit, I suggest you to take a break immediately. Then if there is a sudden dip in a scrape after buying, say copper slipped from 450 to 445, then what should you do? You should not try to recover all the 5 rupees which are in losses. You just keep a selling order at 448 only. Means if you are having 5-point stop loss, 5-point loss, then recover 2 or 3 points in one shot and remaining 2 or 3 points in another shot. Don't try to recover all your losses in a single shot. So sometimes the traders are doing a very big mistake. Suppose at 450 they bought something in impulse and the copper came to 445 and then it is coming again to 447. It's okay, you are happy. Then you are seeing 449, okay, and it touches 450 also, but you are thinking of the brokerage and taxes and you didn't sell it. Now it suddenly came back to 447, then 444, and the loss is again there. So always be careful about the calculation. A wonderful fact I am sharing with you: the biggest losses happens on the day when you are having the profit in the first hour. Suppose you came to the screen and in first half an hour, first hour, you earned 10,000 rupees. Now you are very happy and you are thinking that the day is very good for me, and you become careless, you become cautionless, and whenever you are losing something, you are making some mistakes, you are thinking it's okay, 10,000 we earned in the morning, so we can't be in minus today. So if 2,000 are going, okay, no problem. Then another 3,000 going, okay, no problem. And after so many trades, when you are seeing your trading records, 10,000s are totally vanished and another 15,000 you have lost, and that is quite shocking. So always be careful. Whenever you are having a sudden profit, you just digest it and leave the screen. So there is one example. I am having an analogy for this. The road which is having very less traffic, means that is an express highway, there are more fatal and dangerous accidents. And if there are roads with heavy traffic, there are very rare accidents and that are not fatal at all, that are not dangerous at all. तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि सबसे प्रॉफिट वाले दिन में आपको सबसे बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं. अगर आपको शुरू के 1 घंटे में प्रॉफिट हुआ है, तत्काल इसको डाइजेस्ट करो, बाहर चले जाओ, और फिर उसके बाद अगर कोई एक्सपेरिमेंट आके करना भी है तो 75% प्रॉफिट को सेव करके और 20-25% प्रॉफिट में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं.
क्योंकि भीड़ भरे ट्रैफिक वाले सड़कों पे अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो कभी जानलेवा नहीं होता, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सावधान हैं। आपको ऐसा लग रहा है इतना सारा ट्रैफिक है तो ध्यान से चलें, कम स्पीड में चलें। और लेकिन खाली रोड पे, एक्सप्रेस हाईवेज पे गाड़ियाँ इस तरीके से चलती है, आपको लगता है कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो पूरी तरह जानलेवा होते हैं। तो वही बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि बहुत बुरे बाजार में जब आपको लगता है कि रिस्क है, उस वक्त तो लोगों को बहुत छोटे छोटे नुकसान होते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि रिस्क चला गया, रिस्क इज ओवर, तब सबसे बड़े नुकसान होते हैं। एंड ए ट्रेडर शुड नॉट टॉक मोर। एक ट्रेडर को कभी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी बोलता है वो चीज़ खुद के वर्ड्स या दूसरों के वर्ड्स उसके लिए एक बड़ा इन्फ्लुएंस बन जाते हैं। तो आप अगर स्क्रीन पे आए, यू केम टू द स्क्रीन एंड यू आर सजेस्टिंग ऑल अदर फेलोज सेलिंग सेलिंग सेलिंग, एंड सडनली द मार्केट रिवर्स्ड एंड द बाइंग इज हैपनिंग, द बाइंग इज देयर। नाउ you are bound to your words and you are not having any flexibility in your mind, then you will stick to the selling only and you will hit all your stop losses. So I suggest you to have the flexibility. मतलब आपने सेलिंग 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 चिल्लाया, अचानक से बाइंग आ गई, अब आपको लग रहा है कि 5-7 लोगों को मैं सेलिंग बोल रहा था, बाइंग कैसे करूँ, और आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ कि असली ट्रेडर वो है जो सेलिंग सेलिंग चिल्ला के भी और आखिर में बाइंग में चला जाए और बाइंग में पैसा कमा ले, क्योंकि अल्टीमेटली स्मार्टनेस तो इस बात की कि आपने पैसा कमाया या आपने पैसा खोया, आपने बोला क्या मुद्दा नहीं है, आपने किया क्या, आपने कमाया क्या इस बिजनेस में, दैट इज द रिजल्ट, वो असली चीज़ है। फिर एक बात जो कहना चाह रहा था मैं कि एक और ख़ास बात है कि लोग जब पहला डिप आता है, बहुत बड़ा डिप आया, उसमें तो कम लोग मरते हैं, लेकिन जब वो डिप आके चला गया, आपने देखा कि सिल्वर 60,000 से 48,000 आ गई, वो डिप आके चला गया, फिर ये 48 to 52 गई, और फिर आप सबको लगा कि भाई सिल्वर गिर चुकी, अब तो और क्या गिरेगी, ये सोच के आपने पोजीशन बनाई, यू मेड द पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉसेज एंड विदाउट कैलकुलेशन ऑफ राइट वॉल्यूम। तो अचानक से आपने एक बड़ा वॉल्यूम लेके रख लिया और थोड़ा डिप आया तो आपने थोड़ा एवरेज भी कर लिया कि अब और नीचे तो क्या जाएगी। उस वक्त जो डिप आता है वो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को मारता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में भी ये देखा गया कि जब 21,000 से 9,000 तक की गिरावट आई थी सेंसेक्स में, तब तो फिर भी बाजार जिंदा था, लेकिन बाद में जब मार्केट में सेंसेक्स में रिकवरी आई और वो 13,000, 15,000, 17,000 गया, 20,000 गया, और वहाँ से जब ये 15-17 करता रहा, उस वक्त मार्केट के अधिकतर ट्रेडर्स खत्म हो गए। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है कि आपका जो डिसिप्लिन है, आपके जो सेफ्टी रूल्स हैं, वो बिल्कुल रेगुलर होने चाहिए, वो किसी भी दिन बदलने वाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हेलमेट हमेशा ही लगानी है। यू शुड वियर हेलमेट डेली, बिकॉज we don't have the date and time of accidents. So safety is a regular habit and continuous habit. Do not leave any open trade for big volume more than 10 to 30 minutes. कोई भी ओपन ट्रेड छोड़ के आप 10 से 30 मिनट मैक्सिमम वेट कर लिया, फिर टारगेट आ रहा है, टारगेट बुक करो, टारगेट नहीं आ रहा है तो जहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट चीज़ें जा रही है या थोड़े बहुत लॉस में जा रही है, क्लोज करो और फिर अगले टाइम स्लॉट में एंटर करो। इफ़ यू मेट अ पोजीशन एट 7:02 PM मीन्स 7:02, 7:02 पे कोई पोजीशन आपने बनाया और देखा कि 7:10 तक कुछ हो नहीं रहा है, 7:15 तक कुछ नहीं हो रहा है, जस्ट लिव इट, एंड 7:29, 30 पे कोई अचानक दूसरा मूवमेंट होगा, 7:40 पे फिर से पोजीशन बनाइए और वो 8 o'clock तक उसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो जब भी आपका एक स्टॉप लॉस टूटता है तो एक नियम बना लीजिए कि कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक आप फिर से अगले ट्रेड के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि एक जैसे मौके पे अगर आप यही सब करते रहे तो आपके कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस एक के बाद एक टूटते जाएंगे और फिर आप टूट जाएंगे। एंड यू शुड नॉट वेट टिल द SL हिट इन केस ऑफ बिग वॉल्यूम। अगर आपका बिग वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम कर रहे हैं, आपने सपोज 10 मिनी लॉट ले रखे हैं या 2 या 3 बड़े लॉट ले रखे हैं सिल्वर के और स्टॉप लॉस लगा रखा है 300 पॉइंट का, तो 300 पॉइंट मतलब 9,000 रुपये एक बड़े लॉट में, 3 लॉट में 27,000 रुपये लग जाएगा। भाई स्टॉप लॉस तो इसलिए लगाया जाता है कि अचानक कोई हादसा हो
तो कहीं ना कहीं तो कोई रोक हो। लेकिन हम 27,000 रुपया अपने आंखों के सामने बहते हुए देखें, ये कोई समझदारी नहीं है। आपने कोई पोजीशन बनाई, लगा कि बाइंग आएगी, और थोड़ी देर में लग रहा है नहीं आ रही है तो नीचे जा रहा है, तो फटाफट से 2 लॉट खाली रखो, 1 लॉट में रुकिए। तो वो जो 27,000 का नुकसान है वो सिर्फ 9,000 का रह गया, क्योंकि आसानी से रिकवर किया जा सकता है। अगर आपने 300 पॉइंट 1 लॉट में खोए हैं, तो जब क्लैरिटी आएगी तो 3 लॉट में सिर्फ 100 पॉइंट लेने से 300 पॉइंट रिकवर हो जाएंगे। तो ये पूरा कैलकुलेशन का मामला है। तो लोग जब तक स्टॉप लॉस नहीं टूटता बड़े हिम्मत से बातें करते हैं, बोले ठीक है और क्या होगा, स्टॉप लॉस ही जाएगा ना। लेकिन जब स्टॉप लॉस जाता है पूरे हिल जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखो कितना पैसा लगने वाला है पहले से गिन लो। आप इतनी सारी पोजीशन बना रहे हैं और अचानक आपको लगा सारे स्टॉप लॉस तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर चले गए और 20,000 रुपये माइनस हो गए तो आपकी रूह कांप गई, आप पूरे हिल चुके हैं। तो पहले कैलकुलेट क्यों नहीं किया? तो यू शुड कैलकुलेट ऑल द लॉसेस बिफोर प्लेसिंग द ट्रेड्स, ट्रेड डालने के पहले। एंड जब मैं ये फ्रिक्वेंटली एंट्री और एग्जिट की बातें कर रहा हूँ, देन यू शुड फाइंड अ ट्रेडर विद ब्रोकर विद मिनिमम ब्रोकरेज। तो आपको उसमें ब्रोकरेज की कॉस्ट मिनिमम जहाँ हो ऐसा ब्रोकर ढूंढना होगा, और 2,000 अवेलेबल। आप हमारे सपोर्ट से या हमसे कंसल्ट करके भी इन चीज़ों के बारे में राय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने ब्रोकर को पकड़ लिया और फिर बोल रहे हैं कि वो तो इतना लेता है, वो ये करने देता है, वो ये नहीं करने देता है, तो हमने क्या ठेका ले रखा है, हम उसके साथ बंधे हुए क्यों हैं? एक ओपन मार्केट है, पूरी इंडियन गवर्नमेंट ने आपको इतने सारे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं, इतने रूल्स है, रेगुलेशंस है, और आप बंधे हुए हैं सिर्फ अपने इग्नोरेंस की वजह से। तो सीखो, जानो और आज़ाद हो जाओ। सो यू नीड टू फाइंड ब्रोकर विद मिनिमम ब्रोकरेज। और अब कुछ बातें, चलिए आपको ब्रोकरेज बहुत कम भी है, फिर भी स्टिल यू शुड हैव फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स। मतलब आपको फिक्स करना होगा कि मैं 3 ट्रेड करूंगा, उसके बाद चौथा नहीं करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ट्रेडिंग में मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब हम लोग सोचते हैं कि ब्रोकरेज कम है, तो हम इतना फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हैं और हमको अंदाज़ा होता है कि यार 4-5 बार ट्रेड हो गया होगा। और जब आप ट्रेडिंग रिकॉर्ड जाके देखेंगे, इट मे बी मोर देन 10 टाइम्स। मतलब आपने 10 से 15 बार ट्रेड डाल दिया, तो इसका मतलब आप 4-5 हज़ार रुपये ब्रोकरेज में बर्बाद कर दो, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए यू नीड द डिसिप्लिन, और तगड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। वो आप किसी फैमिली मेम्बर को या किसी अलार्म क्लॉक को या किसी कलीग ट्रेडर को कहो कि मुझे बता देना जब मेरे 3 ट्रेड हो जाए, रोक देना प्लीज़। वो जैसे भी लैंग्वेज में, जैसे भी तरीके से मुझे होश में लाना हो, ले आए एक बार के लिए। फिर हैवी फूड, स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड टी और कॉफ़ी, दोज आर इन डीप रूट ऑफ लॉसेस। मेडिटेशन एंड म्यूज़िक इज़ गुड फॉर ट्रेडर्स। एफिशिएंट ट्रेडिंग करनी है, मेडिटेशन होना चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, उसको यूज़ करो। और अगर आपने बहुत भारी खाना खाया है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत एक्सेसिव बीच बीच में, आप बहुत ज़्यादा टी या कॉफ़ी ले रहे हैं, तो ये चीज़ें नुकसान की जड़ों में हैं। ये जब मैं इतने साल के तजुर्बे से, 11 साल के तजुर्बे से या 14 साल के तजुर्बे से, क्योंकि 11 साल से तो मैं ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ, तो 14-15 साल के तजुर्बे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को दिशा देती है। क्या होता है ये सब करने से? स्मोकिंग की आपने, तो आपकी ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, डीप नहीं रहेगी। अगर आपकी ब्रीदिंग शैलो है, आपकी सांसें अगर उथली हो गई, तो आपके अंदर डर आ जाएगा, एक्सेसिव डर। एक्सेसिव डर का मतलब इम्पल्स, और इम्पल्स से सीधा सीधा गलत डिसीजन से नुकसान होता है। सो इम्पल्स कॉजेज रॉन्ग डिसीजंस, एंड वन रॉन्ग डिसीजन कॉजेज अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। एक बटन अगर गलत लगाया आपने, तो आपकी शर्ट के सारे बटन गलत लगते हैं। और आप अपने किसी भी ट्रेडिंग लॉसेस वाले दिन को याद कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो लॉसेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। एक छोटी सी बात थी जहां आपके हाथ में था कि चलो ठीक है, ये 2000 शेयर है, 30 पैसे नीचे आ गए, 500-600 रुपये लग रहे हैं, निकल जाता हूँ। पर आपने सोचा कि बस ये 30 पैसा आ जाए और मैं निकल जाता हूँ, मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन कहाँ लिया था ये भूल जाइए, कहाँ जा रहा है इसको देखिए। वेयर इज इट गोइंग? वेयर डिड यू बाय? यू जस्ट फॉरगेट दिस। नाउ वेयर इज इट गोइंग? तो 600 रुपये नुकसान है, ये अभी मुद्दे की बात नहीं, कितना हो सकता है। यू शुड फोकस ऑन दैट एंड जस्ट क्लोज द पैसेज ऑफ लॉस।
उस पैसेज को, उस रास्ते को बंद करो। अगर आपका मटका फूट गया है, नीचे से लीक कर रहा है, तो आपका काम है उस छेद को बंद करो। अगर आप उसमें से कितना भी ऊपर से पानी डालोगे तो छेद और बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ लॉस। वी शैल डिस्कस लेटर अबाउट राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, right practices for an efficient trader. Thank you very much. Keep listening all the things and enjoy the profits. Thank you. Bye.